آج ہم بات کریں گے رویندرا کوشک کے بارے میں کہ رویندرا کوشک کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں کا رہنے والا تھا، را ایجنٹ کیسے بنا، کون کون سے ممالک میں جا کر اس نے اپنے ملک بھارت کے لیے جاسوسی کی اور کہاں جا کر وہ پکڑا گیا، اور پھر پکڑے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے اپنے ملک نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رویندرا کوشک راجستھان کے ایک علاقے شری گنگا نگر کا رہنے والا تھا۔ بچپن سے ہی رویندرا کوشک کو تھیٹر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کے فادر ایئر فورس میں تھے، گھر میں 4 بہن بھائی تھے اور اس کا نمبر ان سب میں سے دوسرا تھا۔ اور رویندرا کوشک نے شری گنگا نگر کے کالج سے ہی BCom کیا اور کالج تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت سارے تھیٹر کر چکا تھا اور اب بھی کرتا تھا، کیونکہ اس کو تھیٹر کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا اور وہ کافی خوش شکل تھا اور کوئی لوگ کہتے تھے کہ اس کی شکل ونود کھنہ سے ملتی جلتی ہے۔ رویندرا کوشک تھیٹر میں زیادہ تر رول دیش بھکتی کے کیا کرتا تھا، کبھی فوجی جوان کے رول کر لیے، کبھی سپاہی کے رول کر لیے، اس طرح کے رول اسے بہت زیادہ پسند اور حب الوطنی کا جذبہ بھی تھا۔ تو شروع سے ہی رویندرا کوشک کے ذہن میں اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے کچھ نیا کرنے کی آرزو اور خواہش تھی۔ 1975 میں رویندرا کوشک نے BCom کر لیا اور یہ اسی سال کی بات ہے کہ جب 1975 میں ہی لکھنؤ میں ایک شو تھا۔ لکھنؤ کے شو میں اسے بھی پلے کرنا تھا اور اس شو میں رویندرا کوشک جو کردار تھا وہ ایک فوجی جوان کا تھا اور اس پلے میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کیسے ایک بھارتی نوجوان چین کے قبضے میں آ جاتا ہے اور چین کی فوج اس سے راز اگلوانے کے لیے کس طرح اس پہ مظالم اٹھاتی ہے اور وہ پوری طرح سے فوجی جوان ٹارچر ہو رہا ہے لیکن اپنے ملک کے راز نہیں بتا رہا، اور یہ کردار کیا تھا رویندرا کوشک نے اور بہت ہی پیارے انداز میں اس نے یہ کردار ادا کیا۔ اب یہ پلے ہو رہا تھا لکھنؤ کے ایک تھیٹر میں اور وہاں را کے کچھ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور تب بھی یہ تھیٹر کرتا تھا تو اس وقت سے را کے کچھ آفیسرز کی نظر اس پر تھی کیونکہ یہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتا تھا۔ اچھا، عام طور پر ایجنسیز جاسوسی کے لیے زیادہ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جو بارڈر کے قریب قریب رہتے ہیں۔ رویندرا کوشک جس علاقے کا رہنے والا تھا وہ بارڈر پاکستان کے بالکل بہت ہی قریب ہے۔ اب لکھنؤ میں تھیٹر کے بعد را کے آفیسرز اس سے ملے اور اسے کہا کہ یہ تم نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے، لیکن اگر واقعی میں تم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو دلی میں آ کر ہم سے ملو، ہمارے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ رویندرا کوشک نے حامی بھر لی۔ 1975 کے اینڈ میں رویندرا کوشک دلی پہنچتے ہیں، لیکن ابھی تک یاد رکھیے گا کہ رویندرا کوشک کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا کام ہے، مجھ سے کیا کام لیا جانے والا ہے اور را کس بلا کا نام ہے۔ جب وہ دلی آتا ہے تو 2 لوگ اسے ملتے ہیں، اس سے بات چیت ہوتی ہے اور اسے را کے دفتر لے جایا جاتا ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے ہیڈ آفس میں۔ تب رویندرا کوشک کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی خفیہ ایجنسی کا نام را ہے۔ اب را کے آفیسر سب سے پہلے رویندرا کوشک کو پوری دنیا میں جاسوسوں نے جو کارنامے کیے ہوئے بھارت کے حق میں وہ سب اسے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ اس کے بعد را اسے آفر کر دیتی ہے کہ کیا تم نے بھی جاسوس بننا ہے تو بتاؤ۔ بنا سوچے سمجھے رویندرا کوشک ہاں کر دیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ اب رویندرا کوشک کو جو سب سے پہلے چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ بات تم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ اس کے بعد رویندرا کوشک کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ امرتسر، پٹھان کوٹ اور دلی، 3 جگہ پہ رویندرا کوشک کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اچھا، رویندرا کوشک کی پنجابی بہت ہی اچھی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی زیادہ تر علاقوں میں پنجابی بولی جاتی ہے۔ اب را کے آفیسر اس بات سے خوش تھے کہ چلو پنجابی لوگوں میں گھلنے ملنے میں اس سے مشکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ سے بھی پنجابی آتی ہے اور وہاں بھی بہت ساری جگہوں میں پنجابی بولی جاتی ہے۔ اب را کے لیے کچھ چیلنجز تھے کہ جب پاکستان میں اس کو انڈر کور جاسوس بنا کر بھیجنا ہے تو اسے اردو بھی آنی چاہیے، لکھنی بھی آنی چاہیے، پڑھنی بھی آنی چاہیے، اس کو نماز آنی چاہیے، اس کے اور مذہبی رسومات ساری آنی چاہیے، اس کے بعد ہی ان لوگوں میں جا کر گھل مل سکے گا۔ سب سے پہلے رویندرا کوشک کے ختنے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد اسے اردو پڑھائی جاتی ہے، اسے عربی پڑھائی جاتی ہے، اسے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اسے اسلام کی ساری بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ پہلے فیس میں رویندرا کوشک کو یہ ساری چیزیں یعنی نماز، روزہ، ایک مسلمان پاکستان میں اگر رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے، کیسے جیتا ہے، کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ پہلے فیس میں را کی طرف سے ایک مولانا کے ذریعے تمام چیزیں رویندرا کوشک کو سکھائی گئیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے فیز میں اس کو پاکستان کے نقشے کے بارے میں مکمل جانکاری دی جاتی ہے۔ پاکستان کے شہر کون کون سے ہیں، وہاں کون کون سی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کے پولیٹیشین کون کون سے ہیں، فی الحال کا پرائم منسٹر کون ہے، یعنی فیز 2 میں پاکستان کی ساری ہسٹری بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فیز 3 میں جاسوسی کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ ایک جاسوس کا، انڈر کور ایجنٹ کا کیا کام ہوتا ہے اور اس نے وہ کام کیسے سر انجام دینا ہے۔ ویپن کی مکمل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب را نے ایک طرف یہ ذہن بنا لیا تھا کہ رویندرا کوشک کو پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے لیے ہم نے رکھنا ہے۔ اب وہ رویندرا کوشک کو سلیپر سیل کا حصہ بنانے والے تھے، یعنی سلیپر سیل کیا کہ وہ انڈر کور ایجنٹ ہوتے ہیں اور لمبے ٹائم تک کسی بھی ملک میں رہ کر وہاں کی انفارمیشن نکالتے ہیں اور اپنے ملک تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس میں ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور ایک لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کسی مشن کے لیے کسی بھی سپاہی کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اور یہ کام کر کے آؤ، یعنی کہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، سال کے لیے۔
लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म। वो बंदा उसी मुल्क में उन्हीं लोगों के साथ जाकर रहता है, वहाँ से शादी करता है, वहाँ के साथ घुल मिल के रहता है, और जब अपने मुल्क को उसकी जरूरत होती है तो वो अपने मुल्क की हिफाजत करता है और वहाँ के राज अपने मुल्क को पहुँचाता है। और रविंद्रा कोशाक को भी लॉन्ग टर्म सिपाही बना रहे थे। आपने पाकिस्तान में जाना है और वहाँ जाके रहना है और वहाँ के लोगों में से शादी करनी है और बिल्कुल वहाँ का होकर रह जाना है, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत होगी, यानी आपके मुल्क भारत को आपकी जरूरत होगी, आपने अपने भारत के लिए सबसे पहले खड़ा होना है और पाकिस्तान से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालकर अपने मुल्क पहुंचानी है। पाकिस्तान भेजने से पहले रविंद्रा कोशाक को पहले 6 से 7 मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाता है ट्रायल के लिए, लेकिन वो तमाम ममालिक में उन ट्रायल पे पूरा उतरता है और अपना काम बखूबी करके वापस आता है। अब ये फैसला हो जाता है कि अब रविंद्रा कोशाक इब्तिदाई इम्तिहान में पास हो चुका है, अब इसे पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए भेजा जाएगा। लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान आने से पहले रविंद्रा कोशाक 2 से 3 महीने के लिए पाकिस्तान पहले आता है और अपना काम करके वापस चला जाता है। 1977 में रविंद्रा कोशाक को पाकिस्तान भेजा जाता है एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ। रविंद्रा कोशाक के पाकिस्तान में उतरने से पहले उसका आईडी कार्ड तैयार हो जाता है और ये एजेंसीज ये काम बहुत आसानी से कर लेती हैं और उसका नया नाम नबी अहमद शाकिर रखा जाता है। पाकिस्तान जाने से पहले रविंद्रा कोशाक ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, बल्कि उसने घर वालों को यही बताया कि मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई मेरी अच्छी जॉब हो गई है। रविंद्रा कोशाक यानी नबी अहमद शाकिर कराची में पहुंचता है और राह के लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब यहाँ से रविंद्रा कोशक का जासूसी की दुनिया का सफ़र शुरू होता है। अब राह ने जितना रविंद्रा कोशक के बारे में सोच रखा था उससे कई गुना ज़्यादा ये तेज़ और तर्रार आदमी था। जब ये रविंद्रा कोशाक कराची पहुंचता है तब उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, यानी 23, और कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और कराची से ही लॉ की डिग्री हासिल करता है। रविंद्रा कोशक यानी नबी अहमद शाकिर जब लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है तो अचानक एक दिन वो न्यूज़पेपर में पाकिस्तान आर्मी की वैकेंसीज की पोस्ट देखता है कि वैकेंसीज खाली हैं। अब नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्रा कोशाक को ये लगता है कि इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो। वो उसी टाइम पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर देता है और उसकी किस्मत देखें कि वो पहले अप्लाई पे ही उसकी सिलेक्शन हो जाती है। अब इंडियन जासूस रविंद्रा कोशक नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान, एक होता है किसी भी मुल्क में जाकर जासूसी करना, दूसरा उसी मुल्क के एक डिफेंस के इदारे में जाकर जासूसी करना। जब ये बात राह को पता चली तो राह के अफसरान तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, उनके नजदीक ये बहुत ही अच्छी खबर थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है, पाकिस्तान आर्मी का मेजर रविंद्रा कोशाक यानी नबी अहमद शाकिर। जब वो मेजर के रैंक तक पहुंचता है तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने मुल्क में राह को भेजता है और कहते हैं कि उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की राह को पहुंचाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा था। अब पाकिस्तान आर्मी में काम करने के दौरान ही एक अफसर की बेटी से रविंद्रा कोशक को प्यार हो जाता है। उस औरत का नाम अमानत होता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी को भी स्लीपर सेल्स का हिस्सा बनाया जाता है उसमें वहाँ का रहन सहन सब कुछ शामिल होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ शामिल होती है तो कि बेहतर तो ये होगा कि वो वहाँ की किसी भी लड़की से शादी कर ले ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन ये भी बात सच है कि रविंद्रा कोशाक को उस लड़की से सच में प्यार हो गया। उसके बाद उसने ये खबर राह को भेजी और उससे शादी करने की इजाज़त उसने राह से तलब की, क्योंकि इजाज़त के बगैर वो शादी नहीं कर सकता था। लेकिन जब राह ने देखा कि ये बंदा काम अच्छा कर रहा है और ये मुल्क के लिए फायदेमंद है तो राह ने शादी की इजाज़त भी दे दी। राह से इजाज़त मिलने के बाद नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्रा कोशक की अमानत नामी लड़की से शादी हो जाती है और उसके बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम अरीब रखा गया। अब देखिए ये जासूस कितने सख्त होते हैं कि जासूस की बीवी तक को नहीं पता कि इसका असल नाम क्या है। ये एक हिंदू है और ये यहाँ सिर्फ जासूसी की घर से आया हुआ है। 1981 रविंद्रा कोशाक के छोटे भाई की शादी होती है। उसको शादी में जाना भी बहुत जरूरी होता है। वो इस चीज से राह को आगाह करता है कि मैंने अपने छोटे भाई की शादी में जाना है, उसके लिए काइंडली कुछ इंतजाम किया जाए। पाकिस्तान आर्मी में रहकर किसी जासूस को वापस इंडिया जाना है, एक शादी अटेंड करनी है, तो ये खबर कहीं भी लीक हो सकती है और अगर ये खबर लीक हो गई तो सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है। अब राह इसके लिए मुकम्मल प्लानिंग करती है कि रविंद्रा कोशाक को सबसे पहले पाकिस्तान से सऊदीया उम्रा की गर्ज से भेजती है, फिर सऊदीया से दुबई और दुबई के रास्ते फिर इंडिया पहुंचाया जाता है अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए। और पाकिस्तान में किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं कि वो हिंदुस्तान जा रहा है, बल्कि सबको सिर्फ यही पता था कि ये सऊदी अरब में उम्रा करने गया हुआ है। अब शादी के दौरान रविंद्रा कोशाक के वालिदैन उस पर ये जोर डालते हैं कि तुम बड़े हो, तुम्हारी भी शादी की जाए। इसी दौरान रविंद्रा कोशाक अपने वालिद साहब को ये बात बता देता है कि मैंने दुबई में ही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी कर ली है और मेरा एक बच्चा भी है। इस बात से उसके वालिदैन को बहुत सदमा लगता है कि बेटे ने बगैर बताए शादी कर। शादी खत्म होने के बाद 1981 में ही वापस भारत से दुबई, दुबई से सऊदीया और सऊदीया से फिर पाकिस्तान पहुंच जाता है। रविंद्रा कोशाक और उसके वालिदैन को भी ये बात नहीं पता थी कि शायद रविंद्रा कोशाक से ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अब इंडियन राह रविंद्रा कोशाक पे बहुत ज्यादा एतमाद करने लगी। रविंद्रा कोशाक राह के लिए उनकी आंख का तारा। ये सिस्टम बहुत लंबे अर्से तक चलता रहता, लेकिन
इस दौरान एक इंसिडेंट हो जाता है। 1983 तक रविंद्र पोशाक अपने मुल्क को सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता रहता है और कभी किसी को शक तक नहीं हुआ। हालांकि आर्मी में रहने वाले लोगों की अपनी भी जासूसी की जाती है, लेकिन वो बहुत ही शातिर आदमी था और अपना काम करता रहा। क्योंकि 1983 में किसी और की गलती की वजह से रविंद्र पोशाक पकड़ा गया। होता यह है कि 1983 में इंडियन एजेंसीज पंजाब के एक जासूस को पाकिस्तान भेजती हैं। उसका नाम रखा गया था इनायत मसीह। ये पंजाब का रहने वाला था और रॉ का एजेंट था। इसको शॉर्ट टर्म मिशन पे पाकिस्तान भेजा गया था। इनायत मसीह को रॉ ने ये बता दिया था कि हमारा एक एजेंट है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर के रुतबे पर है, उसका नाम है नबी अहमद शाकिर। उस तक तुमने एक डॉक्यूमेंट पहुंचाना है और कुछ मैसेज भी उसको देना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स और मैसेज के साथ इनायत मसीह को पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। जब इनायत मसीह बॉर्डर क्रॉस करता है तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ चढ़ जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। इनायत मसीह पर टॉर्चर किया जाता है और वो थोड़े से टॉर्चर के बाद ही सारी बात बता देता है। उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो सारी बात बता देता है कि पाकिस्तान में हमारा एक एजेंट है जो पाकिस्तान आर्मी के ओहदे पर है और उसका नाम नबी अहमद शाकिर है। मैं उससे मिलने आया हूँ, उसे कुछ डॉक्यूमेंट देने आया हूँ और उसे कुछ मैसेज देने आया हूँ। वो भी हमारा रॉक एजेंट है। ये सुनकर पाकिस्तान आर्मी की तो होश उड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। और इनायत मसीह हत्ता के नबी अहमद शाकिर का असल नाम भी बता देता है कि उसका नाम नबी अहमद शाकिर नहीं बल्कि रविंद्र कोशिक है। पाकिस्तान आर्मी एक चाल चलती है और इनायत मसीह से कहती है कि तुमने जिस तरीके से और जिस लहजे से और जिस जगह पे उससे मिलना है तुम उसी तरीके से उससे मिलोगे। तुम उसको ये शो नहीं होने दोगे कि तुम पकड़े जा चुके हो। क्योंकि जिना गार्डन में इनायत मसीह और नबी अहमद शाकिर की मुलाकात होना था और उसी तरीके से तुम जाओगे और मुलाकात करोगे और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। सुबह 7:30 बजे के लगभग जुम्मे का दिन था, अप्रैल का महीना था 1983। इनायत मसीह कराची के जिना गार्डन में पहुंचता है और तयशुदा वक्त पे नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कोशिक भी पहुंच जाता है। दोनों एक बेंच पे बैठते हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स का तबादला होता है तो पाकिस्तान आर्मी जो आसपास छुपी हुई होती है वो निकल के आकर नबी अहमद शाकिर को पकड़ लेती है। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका मुंह खुलवाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने बहुत कुछ किया जो करना भी चाहिए था। इसके बाद नबी अहमद शाकिर का किरदार खत्म हो जाता है, यानी उसका भांडा फूट चुका है। अब सिर्फ एक ही किरदार रह गया और वो है रविंद्र कोशाक। रविंद्र कोशाक सियालकोट जेल में थे तो उनकी बीवी अमानत पाकिस्तान आर्मी के एक फर्द की बेटी थी। वो अपने बेटे को लेकर सिर्फ एक दफ़ा जेल में आती हैं नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्र कोशाक से मिलने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि जब तक रविंद्र कोशाक जिंदा रहे उनकी बीवी या उनका बेटा कभी भी मिलने के लिए नहीं आए। क्योंकि अमानत को पहली दफ़ा पता चलता है कि मेरा जो शौहर है वो कोई मुसलमान नहीं, पाकिस्तानी नहीं, बल्कि एक इंडियन है और हिंदू है। रविंद्र कोशाक को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, कभी सियालकोट जेल, कभी मियांवाली जेल, कभी कोट लखपत जेल। रविंद्र कोशिक का मुकदमा आर्मी कोर्ट में चलता रहा और आखिरकार उसे सजाए मौत की सजा सुनाई गई। इन सारे मुकदमात के दौरान रविंद्र कोशिक को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि अक्सर उस टाइम ये भी होता था कि जब दोनों ममालिक के जासूस पकड़े जाते हैं तो जासूसों की अदला बदली होती थी और रविंद्र कोशिक को भी लगता था कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा और मैं भी अदले बदले में चला जाऊंगा अपने मुल्क, क्योंकि ऐसा पहले कई दफ़ा हो चुका है। जैसा कि अगर पाकिस्तान के कुछ जासूस किसी दूसरे ममालिक में पकड़े गए, 3-4 जासूस, और उसके कुछ जासूस पाकिस्तान में पकड़े गए तो ये जासूसों की अदला बदली कर लेते हैं, यानी वो 4 जासूस इनके छोड़ते हैं, ये इनके 4 जासूस छोड़ देते हैं। अब रविंद्र कोशिक खत लिखा करते थे अपने घर वालों को भी और आला सरकार को भी कि मेरी रिहाई के लिए कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी नहीं पता था। उनको तो सिर्फ इतना पता था कि वो दुबई में जॉब कर रहा है। रविंद्र कोशिक कितने अरसे से पाकिस्तान में रहते थे तो उनको उर्दू लिखना बहुत अच्छे तरीके से आती थी। रविंद्र कोशिक के घर वालों को एक दिन एक खत आता है जो उर्दू में लिखा हुआ होता है। अब उसके घर में सिर्फ एक बंदे को यानी उसके वाले साहब को उर्दू लिखनी आती और पढ़नी आती थी। वो खत उसके वाले साहब के हाथ लगता है। जब उसके वाले साहब ये बात पढ़ते हैं, उस खत में लिखा था कि वो पाकिस्तान की सियालकोट जेल में है और उसे फांसी की सजा हो गई है और वो भारत की गवर्नमेंट और मीडिया से बात करें, मेरी रिहाई मुमकिन है। ये खत पढ़ने की देर थी कि रविंद्र कोशिक के फादर साहब की डेथ हो जाती है और ये बात उसके घर में किसी और को पता ही नहीं चलती, क्योंकि उर्दू पढ़ने तो सिर्फ उसके वाले साहब को आती थी और वो उस खत के सदमे में हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले जाते। उनके वाले साहब की डेथ में मसरूफ वो लोग और वो खत इसी तरह उनके घर में गिरा पड़ा रहता है। रविंद्र कोशिक के फादर की डेथ के बाद कुछ दिन बाद उसके छोटे भाई की नजर उस खत पर पड़ती है, लेकिन उसे वो पढ़ना नहीं आता था। तो वो सबसे पहले तो कोई बंदा ढूंढता है जो उर्दू पढ़ सके। वो खत उठाता है तो दूर एक शहर में कोई बंदा ढूंढता है जो उर्दू पढ़ सके। उसके पास जाता है तो वो पूरा खत का मजमून उसे पढ़कर सुनाता है। तब उसके घर वालों को पहली दफा पता चलता है कि हमारा बेटा सियालकोट जेल में है और उसे सजाए मौत का आर्डर आ चुका है। उसके बाद उसकी फैमिली वाले दिल्ली की तरफ भागते हैं। उस खत में उसने यही कहा था कि होम सेक्रेटरी से बात की जाए, शायद वहाँ से बात बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, जासूस की जिंदगी इसी तरह होती है। जब तक वो जासूसी कर रहा है, जब तक वो उनके काम का है, वो उसका साथ देंगे और इस काम के लिए जासूस को बहुत भारी रकम अदा की जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये रकम, ये फवायद, ये प्रोटोकॉल सब कुछ आपके काम करने तक होता है। गवर्नमेंट आपको इस चीज़ से पहले आगाह कर देती है कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको डिसऑन कर देंगे, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
याद रखिएगा, आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि आप उस मुल्क के रिहायशी हैं या उस मुल्क के जासूस हैं, क्योंकि आपके पास तो आपकी असल आईडी भी नहीं होती जिस पे आपका नाम, आपका इलाका दर्ज हो। वो सब एजेंसीज के पास होता है। आपके पास दूसरे मुल्क की शनाख्त होती है और आप दूसरे मुल्क के ही रिहायशी होते हैं और वहाँ के ही जाने माने जाते हैं। अब रविंद्र कोशाक वक्तन फवक्तन अपने मुल्क को और अपने घर वालों को खत लिखते रहते हैं और कई खतों में उन्होंने इस चीज का इजहार भी किया कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी सरकार मेरे साथ इस तरह करेगी, जिस सरकार ने उसे ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया। और उन्होंने खत में ये चीज भी लिखी कि अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो अमेरिका मुझे 3 दिन में छुड़ा कर ले जाता, लेकिन यहाँ मैं सालों से पड़ा हूँ और मेरी सरकार मेरी मदद नहीं कर रही, लेकिन मैंने जो वादा किया है मैं वो वादा तोड़ूंगा नहीं, मैं कभी कोई राज उगलूंगा नहीं। जब रविंद्र कोशाक जेल में थे, इसी दौरान 2 और जासूस इंडिया के पाकिस्तान में पकड़े गए थे, जिनका नाम करामत राही और अकरम दास था। ये दोनों भी जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए थे। रविंद्र कोशाक की सेहत रोज बरोज गिरती जा रही थी। रविंद्र कोशाक को टीबी की बीमारी हो गई थी। अकरम राही भी उन जासूसों में से एक जासूस थे जिन्होंने जासूसी के इल्जाम में जेल काटी और बाद में रिहा कर दिए गए। उसकी मुलाकात भी रविंद्र कोशाक से जेल में हुई। उसने अकरम राही को कुछ खत भी, अपनी बीवी और अपने बेटे की तस्वीरें भी दी ताकि कभी वो हिंदुस्तान आए तो उनको पहचान सकें। फिर रविंद्र कोशाक के फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फांसी की सजा को उम्र कैद यानी 25 साल कैद में तब्दील कर दिया था। एक खत में रविंद्र कोशाक ने अपने घर वालों को ये लिखा कि मुझे टीबी हो गई और मैं सख्त बीमार हूँ और पाकिस्तान में टीबी की दवाई नहीं है, तो मेहरबानी फरमाकर आप टीबी की दवाई इंडिया से पाकिस्तान अगर भेज दें। और घर वालों ने टीबी की दवाई इंडिया से पाकिस्तान भी भेजी थी। अब टीबी की बीमारी के बाद रविंद्र कोशाक को साथ दिल की बीमारी भी हो जाती है और नवंबर 2001 में मुल्तान की जेल में रविंद्र कोशाक की मौत हो जाती है। लगातार 18 साल तक वो अपने मुल्क से अपनी रिहाई के लिए बात करते रहे, लेकिन याद रखिएगा जासूस को कोई भी ऑन नहीं करता, तमाम मालिक उसको डिसऑन कर देते हैं और मुल्तान जेल की बैक साइड पर ही रविंद्र कोशाक को दफना दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से वो नबी अहमद शाकिर यानी मुसलमान ही था और उसको मुसलमानों के तरीकाकार से ही उसकी नमाज जनाजा अदा करके उसे दफनाया गया। रविंद्र कोशाक ने मरने से 3 दिन पहले अपने मुल्क के नाम में खत लिखा था और उस खत में ये था कि जिस मुल्क के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, शायद लगता है मैं उस मुल्क के लिए किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए वो मेरा साथ नहीं दे रहा और मुझे डिसऑन कर रहा है। और इस जासूस को अपने मुल्क की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। रविंद्र कोशाक ने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या उसने मुल्क ने उसके साथ क्या किया, उसे डिसऑन कर दिया और वो बीमारी में पड़ा पड़ा मर गया। याद रखिएगा, जो भी लोग जासूसी के शौकीन हैं या अपने मुल्क के लिए जासूसी करना चाहते हैं या जासूस बनना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए या पैसे के लिए या किसी और मकसद के लिए, याद रखिएगा जब तक आप जासूस हैं, आप इंफॉर्मेशन अपने मुल्क को दे रहे हैं, तब तक आप ठीक हैं। जब आप पकड़े गए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आपको नहीं छोड़ा जाएगा और आपका अपना मुल्क, अपना देश आपको डिसऑन कर देगा। रविंद्र कोशाक की कहानी उन तमाम के लिए सबक है, उन जासूसों के लिए जो जासूसी करते हैं, चाहे वो पैसे के लिए करते हैं, चाहे वो देश से मोहब्बत के लिए करते हैं, लेकिन आपका मुल्क आपको डिसऑन कर देगा। अगर जासूसी करने जा रहे हैं तो ये बात ज़हन में रखें कि आप कभी भी पकड़े जा सकते हैं और सजाए मौत आपकी मुंतज़िर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।